6 महीने के दौरान सीएमडी सरकार का आगमन कई बार हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है और वी कैन रोल। वी आर रोलिंग। रोलिंग यस। तो 6 महीने के दौरान सीएमडी सरकार का आगमन कई बार हुआ ट्रेनिंग सेंटर पे। द गुड पार्ट वाज ही वाज आल्सो टेकिंग क्लासेस and he is excellent. I mean, whatever he taught us during that period, that got printed in my somewhere, like very simple and very clear. And he was not bookish. He never compelled us to, go through a certain pattern. He was basically observing all GTOs and accordingly devising the way to make each and every person understand. चाहे वो लैंग्वेज था, कंटेंट था, या उसको सिंप्लीफिकेशन करना है वो, या कितने उन सिक्योरिटी मैटर्स से दूर हैं फिर भी आपको कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कुछ इतनी सिंप्लीफाइड वे में करी कि जब भी उनके क्लास होते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस तो होता था, लेकिन जब बाहर निकलते थे तो हेवीनेस नहीं रहता था। हालांकि ट्रेनिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो गार्ड हों या ऑफिसर्स, उनको एक फील हो जाता कि हम तो एक कैद में। तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। जब भी वो आते थे तो हमें गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी करनी पड़ती थी। दैट वे बेसिकली वी वे रिहर्सिंग आवरसेल्फ आल्सो, लाइक आवर पैरेड, आवर पीटी, एवरीथिंग। उसी दौरान का एक वाक़या था जब टर्की से गेस्ट आए थे and they landed in the helipad of our training center itself. I recall one small incident in the director bungalow where we all GTO were invited to a party with the Turkey guest and introduced ourselves, and we were having breakfast over there, morning breakfast was there. The director bungalow is just in the Bangkok river, very picturesque in the open area, basically something was getting prepared. And the very interesting part is like जब भी कोई गेस्ट आते थे तो वहाँ लिट्टी चोखा का अरेंजमेंट किया जाता है। दैट इज द टेस्ट ऑफ दैट लिट्टी चोखा यू वोंट फाइंड एनीवेयर, नॉट इन शॉप, नॉट इन होम। एंड लाइक कहा जाता है कि खाने में जैसे 5 चीज़ें ऐड हो जाती है तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है, लाइक अचार, चोखा, खट्टा, इस तरह की जो रीजनल लैंग्वेज में वहाँ डिशेज था तो लिट्टी के साथ वो सर्व होती थी। तो जब गेस्ट आया तो हम लोगों ने मेनू का अरेंजमेंट हम ही लोगों ने किया था। जो जीटीओ होते थे उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी होती थी कि यस गेट प्लीज एंड फील हैप्पी एंड फील समथिंग डिफरेंट। तो हम लोगों ने साथ में जलेबी बनवाई थी। And in their country, Turkey, basically, that dish is totally absent. So the moment he has taken one bite, like it's syrup basically dropped in his shirt. So he got surprised that from where it came. तो मुझे याद है चरण सर ने उनको एक्सप्लेन जिस तरीके से किया, that was very humorous in Hindi. Then further he translated in Hindi. And we were laughing, and he also joined in laughing. That he told that like we injected through syringe the syrup inside that one, and that is what this made so tasty. So that kind of multiple occasions basically we enjoyed together over there. ट्रेनिंग जब खत्म हुई तो हम लोग को अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया। हमारी जो फर्स्ट पोस्टिंग आई थी प्रोविजन की वो RCM सीतापुर चीनी में थी। आई वॉज अलॉन्ग विथ वन ऑफ माई कलीग बेसिकली, जिन्हें वहाँ पे लोग तोता मैना की जोड़ी बोलते थे, लाइक करण एंड हसन। हसन इज नाउ लाइक सम अदर कंपनी, बट
chairman sir got information that we have been deployed there. So immediately he called and he told that, okay, you come down to Gurgaon. So we reported DLF Gurgaon. आज का जो DLF है और उस समय की DLF, that was phase 1. It was totally different. So it was 1995, 30 years back. We handled that DLF very well. 2 साल 3 साल के बाद जब 9th बैच आई तो चरण सर ने बुलाया. उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप इनको ट्रेन करें. तो right from selection basically started, and the board I was also there, and we selected 22 people finally. A lot of people were reported because by then basically company grown. The moment I believe in 1995 when I joined, hardly it was 11 offices altogether in India. Now we are 380 plus offices, 14 plus company. एक मिसिंग कंटेंट जो है बिकॉज वो ये है कि तब आप बाय नेम ज़्यादातर लोगों को जानते थे. नाउ इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स a huge team. Even sometimes I surprised, like within office also, you are not able to recognize that who is he. that is the case. Like that much big this organization became. तो जब हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की और उन 22 सीटों में सभी फिजिकल, मेंटल, लिंगुआ बेसिस, like they were all very different to each other. Some were from Manipur, some were from South, some were from base, central. अलग अलग लोगों को एक साथ बांधना. But I feel like the moment you connect with such program, you become mother there. आप अपना पक्ष भूल जाते हैं. How a mother basically groom a child. So that way basically you groom there. I was a street master. Lot of abbreviation I got. कुछ हैं जो आज सुनने में, I mean, it made me laugh also. Like Rakshas, guns, this, that, etc., etc. Like lot of such abbreviations were there. But one thing I recall, like when they left after 2-year training, they were crying. And they all are holding very good position over there. That is the great part, very satisfactory part. I believe like सभी के अंदर वो हुनर होता है और कुछ लोग उससे इनकार करते हैं, खुद से इनकार करते हैं. ब्रशअप करना एक अलग चीज़ है. ठीक उस तरह से होता है जैसे आप हमारे यहाँ एक कहावत है कि आपके जूते में आपका शक्ल दिखना चाहिए, इतना चमकना चाहिए. तो जब आप पैरेड के लिए जाते हैं तो उस पर धूल पड़ जाते हैं. लेकिन आप उस धूल को केवल उंगली से अगर आप हटाना चाहेंगे तो अगेन इट विल शाइन. सो इट मीन्स दैट लाइक द एक्सटर्नल एजेंट इज वेरी माइन्यूट. इट इज सेल्फ who groom himself also. पर उस 6 महीने में हम लोगों ने I was hardly sleeping for sometime 2 hours, 3 hours, not more than that. Because एक ट्रेनिंग में होता है कि अगर आपसे नज़र हटी तो आप अपना बचकर कहीं भी जाना चाहेंगे. And that is the position when they lost the mainstream training. उनको बंक मारने की आदत हो जाती है और अपने ड्यू कोर्स को पूरा नहीं करने की आदत हो जाती है. तो that way basically I was very hard taskmaster then, and I appreciate their effort that they did. They qualified, all qualified. कुछ लोग मेरे से उम्र में 12 साल तक बड़े थे उस समय, and they were not able to sit for like very
physical exercises like karate, frog jump, etc. They did all. हमें एक वाक़या तो उस समय का भी याद था कि हम लोगों ने एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था ट्रेनिंग के दौरान. सो अब मणिपुरी बैम्बू डांस आते हैं और वो हम लोगों ने कराया. उस तरह की बहुत सारी चीज़ें कराया. तो at one point of time CMB has asked me that इनका बाकी ट्रेनिंग भी चल रहा है या नहीं, because that was really a wow program. And I believe like he felt that they are only attending cultural program, not other thing. But then when he addressed, inquired on, like all papers and other thing, he got very satisfactory answer and he was satisfied. तो इस 2 साल के प्रोग्राम में जो 6 महीने की वहाँ की ट्रेनिंग के बाद जो लग जाते हैं, तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 9th क्लास में भारत दर्शन. वी बाय अ बस, वी केप्ट ऑल 22 IIM there and we have taken across the country some tourist place and like those places also where we have deployment, where we have offices. So we visited, we met people. तो पहला भारत दर्शन था. पूरे राज्य से होता हुआ फिर वापस दिल्ली में वो खत्म हुआ. एंड फ्रॉम देयर बेसिकली दे गॉट देयर डिप्लॉयमेंट. एक हर एक GTOs जब ज्वाइन करते हैं तो उनमें एक झिझक होती है. पहली झिझक होती है कि आपको लगता है कि आप अगर बोलेंगे तो शायद गलत बोलेंगे. तो आइस ब्रेकिंग के लिए हम लोगों ने आइस ब्रेकिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बहुत सारे फैकल्टीज हम आउटसाइड से भी बुलाते थे. इंग्लिश की क्लासेस के लिए फैकल्टीज बुलाते थे. मिसेस जैनी मंटू वाज फ्रॉम जमशेदपुर, एक्सेलरेटिंग, वेरी गुड इनटू एवरीथिंग लाइक how to sit, how to eat on dining table, how to use a fork, spoon, everything like we were getting trained. तो एक चैलेंज मुझे उस समय के कमांडेंट हुआ करते थे मिस्टर OP शर्मा, फौज से थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर. तो मेरे बच्चों के सामने उन्होंने मुझे चैलेंज दिया. उन्होंने मुझे नहीं चैलेंज दिया, चैलेंज बच्चों को दिया कि with fork and knife basically you eat roti, then I can understand. But it was chapati, a plain chapati. So they all, like plan, did, tried, but they couldn't succeed. So I just basically saw them and I twinkled my eyes and I said like, check my hands and check the plate. I rolled that one, chopped that one as a roll itself, and I ate. Then OP Sharma mentioned that nothing is impossible, everything is possible. It is a very simple exercise. It was given just to, make you understand that you plan, execute, and you deliver. If you are not planning, you simply listen and start acting upon, probably you won't be able to deliver. So that way, basically on normal dining table also, they were getting taught on certain matter and we are giving very good messages through the seniors. बहुत सारी कहानियाँ, GTOs का मतलब ये है कहानी. आज भी अगर सारे GTOs को पूछा जाए इस स्वर में कि whether you wanted to go for a picnic, where you like to go, they will all tell in one word, that training center. Because वहाँ पे ऐसे सालाना कैंप भी लगते थे, हर एक बैच के GTOs आते थे. जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है वो तो एक अलग होता था.
धीरे धीरे उन चीज़ों में कमी आती गई बिकॉज 2.75 मैन पावर लैक मैन पावर कान भी accommodated in here. आज जब एनुअल कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ता है तो बड़े से बड़े हॉल भी भर जाते हैं। सो कुछ चीज़ों में अब उसको फिर उसका जो दायरा है छोटा कर दिया गया, रीजनल बेसिस पे होने लगा है इस तरह से। तो आज भी GTOs को अपॉर्चुनिटी मिलते हैं लोग, आज भी वो ट्रेंड है, आज भी उनको कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ, अपने आप को ग्रूम करने का मौका मिलता है। हर एक मेंटर एक नया मैसेज देता है, हर एक मेंटर के कायदे अपने होते हैं, बट रिजल्ट जो है वो केवल और केवल डेडिकेटेड होता है एहसास के लिए। बिकॉज जो फैमिली कल्चर हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, तो शुरू में हमें लगता था कि ये केवल मुझे मिल रहा है। When chairman sir was speaking to me on certain occasion, I feel like he's very close to me. Though I got opportunity, 2001 onwards, basically, I was with him under his guideline. But एक फील होती है कि आपको ही मिल रहा है, but it is his nature. That family culture is inculcated because of him, because of his own behavior, because of his own pattern, and that is now in the nerve of each and every employee, especially old one. But नए लोग जो आते हैं, अगर 6 महीने 1 साल हो जाता है, तो they start feeling, because आज की जो कल्चर थोड़ी डिफरेंट है। हमारे घर में भी जो 30 साल पहले की जो पीढ़ी होगी और आज की पीढ़ी होगी, उसमें एक डिफरेंस आता है। लेकिन जो नए लोग आते हैं या जो लैटरल एंट्री से आते हैं, जो हमारे अपने ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं हैं, वो भी इस फैमिली कल्चर में सरप्राइजिंगली मिंगल हो जाते हैं। हमें आज तक मैंने शायद ही सुना कि कोई एडजस्ट नहीं हो पाया इस फैमिली कल्चर में। एक परिवार की तरह ट्रीट किया जाता है, बट काम बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह वहाँ पे कोई। बट फैमिली में भी अगर गार्जियन को ज़रूरत होती है, आपको कोई टास्क दिया गया है एक स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर के रूप में, तो गार्जियन भी आपको डांटते हैं, समझाते हैं कैसे करना। सेम थिंग है ऑल्सो। सो GTO कैडर के साथ साथ हमारे सुपरवाइजर कैडर भी चल रहे थे, गार्ड्स की कैडर। अब जब नई कंपनियां आई हैं हमारे साथ जुड़ती चलेगी, तो ये सारी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू मैन पावर, दैट इज गेटिंग ट्रेन्ड इन आवर ओन ट्रेनिंग सेंटर्स। सो यू कैन से at some time you feel that training center is the backbone of company. Sometimes you feel that manpower is the backbone of the company. I kept CMD is the backbone of the company because he is unmatchable. Because of my nature of job during the last 30 years, I served with many companies, I saw developing many companies, and I met a lot of people, a lot of higher dignitaries. I never found any person like having those kind of skill, those kind of behavior, those kind of nature, all together in one person. तो वो एक डिफरेंस जो है आपको सोचने को मजबूर करता है कि आप कुछ वैसा बनना चाहें। कोई बन नहीं पाता है, बट अगर 5% 10% भी गुण आती है और आते हैं, तो वो कंपनी को फ्लोरिश करने में, फैमिली को डेवलप करने में बहुत मायने रखता है। सर का योगदान कंपनी के लिए ठीक वैसा ही है जैसे वो अपने परिवार के लिए। I feel like the way he
treat his son, the same way he treat his employers. At least I feel, and I learned during several conversations with other people, other colleagues, that they are also getting treated in the same manner. Because everywhere I can't be present. So through word of mouth itself, basically you can get to know. तो वो एक ऑरा है, वो ऑरा का थोड़ा थोड़ा असर सभी पे आता है, जो उनके संपर्क में आता है उस ऑरे में आता है। और आप जब एक किसी ऑरा पे आ जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट को भी वो रेसिप्रोकेट करते हैं, एंड दैट वे बेसिकली क्लाइंट गेट कनेक्टेड, एंड दैट इज द रीजन not only employee but number of client also getting. कुछ client हमारे इतने old हैं because some of the client I know like they are more than 30 years old. कम से कम मैंने भी कुछ client जब डेवलप किए थे वो आज भी हैं, मैं उस जगह को छोड़ चुका हूँ जहाँ मैंने डेवलप किया, but they are still continuing. So उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जितने गुण होने चाहिए एक व्यक्ति में, एक कर्मचारी में, वो उनके साथ बिताए हुए पल से खुद ब खुद जैसे लगता है शामिल हो जाता है. दैट इज द गुड पार्ट. And this I'm not telling because he is my boss. This I'm telling as a human being. I understand like I'm an employee, but parallel, over and above, I'm a human being also. And first I connect as a human